নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ডি প্ৰাইম শোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ প্ৰথমটো বিষয় হৈছে আজিৰ অসমত মাদ্ৰাছাৰ ধ্বংস কৰাৰ কাৰ্য এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম অসমত একাধিক মাদ্ৰাছা ধ্বংস কৰিছে চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সেই মাদ্ৰাছাসমূহ ধুলিসাৎ কৰা হৈছে ডিমলিশ কৰা হৈছে তাৰ এটা অন্যতম কাৰণ আছে তাৰ কাৰণ হৈছে চৰকাৰ ইতিমধ্যে প্ৰমাণ পাইছে পুলিচৰ যোগেদি আৰক্ষীৰ যোগেদি সেই মাদ্ৰাছাসমূহত দুষ্কৰ্ম হৈছে সেই মাদ্ৰাছাসমূহত থিতাপি লৈছে মৌলবাদী তত্ত্ব বা সেই মাদ্ৰাছাসমূহত পোৱা গৈছে এনে কিছুমান তথ্য বা এনে কিছুমান ডকুমেন্ট যাৰ যোগেদি প্ৰমাণ হৈছে যিসমূহ জেহাদী এলিমেন্ট বিশেষকৈ বাংলাদেশৰ পৰা অসমত সোমাইছে আৰু এই মাদ্ৰাছাসমূহৰ গয়না লৈ আছিলা লৈ তৎপৰ হৈছে এই জেহাদী এলিমেন্টসমূহ চৰকাৰৰ এই ভাষ্য আৰু যতে তেনে ধৰণৰ জেহাদী এলিমেন্টৰ অৱস্থিতি পাইছে চৰকাৰে আৰু পাইছে সেই মাদ্ৰাছাসমূহক চৰকাৰে সেই মাদ্ৰাছাসমূহক ধ্বংস কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে এটা সময় আছিল প্ৰিয় দৰ্শক অসমৰ বাতৰিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত স্থান নাপাইছিল কিন্তু সেই দিন সলনি হ'ল আজি অসমত যি হয় সৰ্বত্ৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চৰ্চা হয় বিশেষকৈ মাদ্ৰাছাৰ সমগ্ৰ বিষয়টো মই ক'ব বিচাৰিম ভাৰতবৰ্ষৰ মুছলিম সমাজে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষকৈ বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুছলিম সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰাজনৈতিক দলে প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক আমি তেওঁলোকে কি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে বা সমগ্ৰ ভাৰতৰ মুছলিম সমাজে সমগ্ৰ বিষয়টো কেনে ধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া জনাটো দৰকাৰ বিভিন্ন সময়ত আমি স্থানীয় যিসকল মুছলিম সমাজৰ প্ৰতিনিধি বা মুছলিম সমাজৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতিনিধিক মাতি আমি কথা বতৰা পাতো কিন্তু অসমৰ বাহিৰত কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে হেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বিশেষকৈ আমি সিএৰ সময়ত দেখিছিলো সিএ মুভমেন্ট অসমতো বিৰোধী মুভমেন্ট অসমতো আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু অসমৰ উদ্দেশ্য এই যে আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ উদ্দেশ্য কিন্তু বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন ছিল অসমৰ বাহিৰত অসমৰ ভাৰতবৰ্ষত বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন হৈছিল গতিকে আমিও জনা দৰকাৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিশেষকৈ মুছলিম সমাজে অসমৰ মাদ্ৰাছা ভঙাৰ কাৰ্যটো কেনেকৈ লৈছে সেই উদ্দেশ্যৰে আমি আজি সংযুক্ত হৈছো এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কথা পাতিবলৈ এআইএমআইএমৰ দিল্লী প্ৰদেশৰ সভাপতি কালিফুল্লাহ হাফিজৰ সৈতে আমাৰ সৈতে দিল্লীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে হাফিজ সাহেব বহুত শুক্ৰিয়া हमसे आप जुड़ रहे हैं আৰু ষ্টুডিঅত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নিলয় ভট্ট हाफिज साहब हम लोग आपके पास जाएंगे और प्रिय दर्शक एतियार পৰা আমাৰ যি বাৰ্তালাপ বিশেষকৈ হাফিজ সাহেবৰ সৈতে আমি হিন্দীত পাতিবলৈ হিন্দীত পাতিম কাৰণ তেওঁ অসমীয়া বোধগম্য নহয় हाफिज साहब आपके पास हम लोग जाएंगे मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बोला वो भी आपको बताएंगे पहले लेकिन मैं निलय जी के पास जाना चाहता हूं निलय আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিম মোক এটা কথা কক এখন কিছুমান ইনক্ৰিমিনেটিং ডকুমেন্টস এই যি মাদ্ৰাছাসমূহত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল যাৰ ফলত বিশেষকৈ কিছুদিনৰ আগতে দুদিনৰ আগতে যিখন মাদ্ৰাছা ধ্বংস কৰা হ'ল কালি যিখন মাদ্ৰাছা ধ্বংস কৰা হ'ল সেই মাদ্ৰাছাখনৰ এজন শিক্ষকৰ হাতত কিছু তেনে তথ্য পোৱা গৈছিল যাৰ ফলত চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'লে বুলি চৰকাৰে ক'ব খোজে হেয়া ভাল বেয়া পিছৰ কথা কি প্ৰভাৱ পৰিব নপৰিব বা মাদ্ৰাছা ধ্বংস হ'লে অসমৰ পৰা একেবাৰে মৌলবাদী নোহোৱা হৈ যাব নে হে পিছৰ কথা কিন্তু সেই ডকুমেন্টখনৰ ব্যাখ্যা আপুনি কেনেদৰে কৰে প্ৰথম কথা প্ৰাৰ্থনা ক'ব বিচাৰিম যে যেটো আমি হাফিজুল্লাহ মাৰ্কাজুল মাৰিফ মাদ্ৰাছা কথা কৈছো মাৰ্কাজুল মাৰিফ মাদ্ৰাছা প্ৰায় 35 বছৰ আগতে তাত স্থাপন কৰা হৈছিল মাৰ্কাজুল মাৰিফত প্ৰায় 200ৰ অধিক তাত ছাত্ৰ আছিল তাত শিক্ষা তেখেতে ছাত্ৰসকলে তাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছিল বিশেষকৈ যি ইছলাম ধৰ্মীয় শিক্ষা আছে বা মাদ্ৰাছাত যি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় তেনেকুৱা শিক্ষা তাৰ পৰা তেখেতসকলে আহৰণ কৰিছিল এটা কথাটো হ'ল যে মাৰ্কাজুল মাৰিফ মাদ্ৰাছাত এনে কি আছিল যাৰ বাবে এই মাৰ্কাজুল মাৰিফ মাদ্ৰাছাটো ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ল প্ৰথম কথা আমি সবেই দেখিছো মাৰ্কাজুল মাৰিফত দুটা বুলডোজাৰ তাত লগোৱা হৈছিল মাদ্ৰাছাটো একেবাৰে ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে আৰু লগতে তাত যেতিয়া অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট বা AIUDFৰ দল তালৈ গৈছিল আৰু দলৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল গৈছিল জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী গৈছিল তালৈ আৰু তাত গৈ পেলাই মিটিং কৰি পেলাই তেখেতসকলে যি কৈছিল যে যদি এই গোটেই তাত যদি কোনোবা জেহাদী কাৰ্যকলাপ ধৰা পৰিছে বা কোনোবা জেহাদী সন্দিগ্ধ মানুহ তাত যদি গৈছিল বা তাত থিতাপি লৈছিল বা তাত থাকি পেলাই তেখেতে পহুৱাইছিল তো তেনে স্থিতিত সেই মানুহজনক কৰায়ত্ব কৰিব লাগিছিল সেই মানুহজনক দণ্ড বিহিব লাগিছিল কিন্তু এটা শিক্ষা অনুষ্ঠানক তেনেকুৱাকে ডেমলিশ কৰিব বা ভাঙি দিবা নষ্ট কৰি দিব নালাগে দ্বিতীয় কথাটো এইটো কোৱা হৈছিল যে তাত দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ যিখিনি আইনৰ দুহাই দি হেতু ভাঙি দিয়া হৈছে হেয়া উচিত হোৱা নাই কাৰণ যেতিয়া হেতু নিৰ্মাণাধীন আছিল তেতিয়াই কিন্তু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে যি সমূহ তাত অনিয়মিততা আছে সেইখিনি চাব লাগিছিল এতিয়া আপুনি সুধিছে যে তাত এনে কি বস্তু পালে সেই বিষয়লৈ আহিম অপেক্ষা কৰি আছে কালিমুল হাফিজ
हाफिज डांगरिया, हाफिज साहब, आपसे हम लोग जुड़ रहे हैं, मैं भी आपसे सवाल जवाब करूंगा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं निलय भट्टाचार्य, हम लोग के डेप्यूटी एडिटर हैं, वो भी आपसे सवाल जवाब करेंगे। पहले आपसे जानना चाहेंगे, आसाम में जो हो रहा है, मदरसा को तोड़ा जा रहा है। हाल ही में कल एक मदरसा को तोड़ा गया और निलय भट्टा का कहना है, इसने निगरानी रखी थी पूरे 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 इस न्यूज़ में, उनका कहना है 200 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे इस मदरसे में और इसमें से एक टीचर पाया गया है allegedly was involved in activities related to fundamentalist। तो AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि रात को बच्चों को वहाँ से निकाला जाता है, सुबह सुबह मदरसा को तोड़ दिया जाता है। तो आपकी पार्टी इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी सरकार में है वो अल्पसंख्यकों को, खासतौर से मुसलमानों को टारगेट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि वो मुसलमान और इस्लाम से नफरत करती है। इसीलिए उन्होंने आसाम में पहले जो गवर्नमेंट एडेड मदरसा थे या जो मदरसा बोर्ड था उसको उन्होंने खत्म करके पहले उन्हें स्कूल में कन्वर्ट किया। उसके बाद अब वो जो ऑन एडेड और जो दूसरे मदारिस हैं उन पे उनकी नजर है। जो ये वाकया हुआ है जिसको आधी रात को बच्चों को खाली करने को कहा गया और 12 घंटे से कम के नोटिस में उस पूरी बिल्डिंग को ढा दिया गया, ये जो बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस जो शुरू किया है बीजेपी ने, ये लोकतंत्र के लिए, इंसानियत के लिए, भारत के अल्पसंख्यकों के लिए बहुत खतरनाक है। आखिर भारत के संविधान में पूरा प्रोसीजर लेट डाउन है। अगर कोई चीज अवैध है, पहली बात तो ये, अगर टीचर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व था जो कि गैर संवैधानिक है तो उसके खिलाफ आप केस चलाइए, उसे अरेस्ट कीजिए, उसको कोर्ट के थ्रू सजा दिलाइए, उसे साबित करिए कि वो गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। ये आपको अधिकार कहां से मिल गया कि आप वो जिस इदारे में या जिस मदरसे में पढ़ा रहा था उस मदरसे की बिल्डिंग को 12 घंटे के नोटिस में आप तोड़ दें और बाद में फिर आप झूठे इल्जाम लगाएं कि साहब ये अवैध था। अगर अवैध था तो आपने फिर उसके पीछे पूरी प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं किया? तो ये किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए इस तरह का कार्य करना एक तानाशाही है। कलीमुल साहब, यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगा। एक छोटा सा सवाल है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने ये काफी पहले ही साफ कर दिया था कि मदरसों में अगर इस तरीके की गतिविधियां पाया जाए तो उस मदरसे को ढा दिया जाएगा, उस मदरसे को बंद कर दिया जाएगा। और उन्होंने इससे करीबन 15-16 दिन पहले ही बोला था कि ऐसे गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिस भी मदरसों में ऐसे चीज पाया जाएगा उसको बंद कर दिया जाएगा। दूसरी ओर है कि यूपी में देखा जाए तो वहां भी मदरसों की गिनती शुरू हो गया है, वहां भी उसके हिसाब रखा जा रहा है कि वहां के मदरसे अब किस तरीके से चल रहे हैं। यहाँ भी ऐसे एक फरिश्त बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ की जो मदरसे हैं उस मदरसों में वैसे कितने मदरसे यहाँ पर है जहाँ जो तंजीम बोर्ड के अंदर है, जिसके पास ऑथराइजेशन लेटर है, और ऐसे कितने सारे मदरसे हैं जिनके पास कोई भी कागज, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो अपनी मर्जी से मदरसे चला रहे हैं। तो इस सूरत में मुख्यमंत्री या राज्य सरकार काफी साफ था, उनके मंसूबे काफी साफ थे। ये फिर तो हेमंत विश्व शर्मा को ही हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देना चाहिए और कई मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस उन्हीं को बना देना चाहिए या वहां से कोर्ट खत्म कर देने चाहिए। फिर जो मुख्यमंत्री होगा वही जजमेंट देगा और वही पे बुलडोजर लेके पहुंच जाएगा तोड़ने के लिए। ये क्या मजाक बनाया हुआ है बीजेपी ने? ये किसने इनको अधिकार दे दिया? देश में संविधान है, संविधान में बाकायदा एक प्रोसीजर है, चुनी हुई सरकार के एक सीमित अधिकार है, वो चिन्हित कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके जो एजेंसीज हैं, जो इदारे हैं, उनको बोल सकते हैं। अगर आप लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं उसमें पहला अगर स्तंभ विधायिका है तो दूसरा स्तंभ न्यायपालिका है, तीसरा स्तंभ आपके व्यवस्था जनाब यहाँ पे फिर से जनाब एक पॉइंट यहाँ पे फिर से मैं लाना चाहूंगा आपके सामने कि एक तंजीम बोर्ड बोल के भी एक चीज होता है। जो तंजीम बोर्ड इन मदरसों मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कैसे पढ़ाया जाएगा, उनका कैसे शिक्षा वहां पे हो रहा है, इनको जो रिलीजियस जो स्टडीज है उनके साथ मॉडर्न स्टडीज उनको मुहैया किया जा रहा है कि नहीं, उनको दिया जा रहा है कि इसके लिए एक तंजीम बोर्ड है। और यह मदरसा तो तंजीम बोर्ड के तहत ही आता है क्योंकि 35 साल पुराना मदरसा है, तो निहायत वो तंजीम के अंदर उसके अंडर होगा ही। तो तंजीम बोर्ड का यहाँ पे क्या किरदार है? तंजीम बोर्ड कहाँ था, क्या कर रहा था? देखिए आर्टिकल 30 इस बात की इजाजत देता है कि माइनॉरिटीज
या बात सिर्फ मुसलमानों की करें, मुसलमान अपने दीनी मदारिस, अपने सिलेबस, अपने मैनेजमेंट के तहत चला सकते हैं, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होगा। और ये जो संविधान निर्माताओं ने जब ये आर्टिकल बनाया था तो उनको ये बात मालूम थी। जनाब बेशक, लेकिन एक चीज यहां पे आपके नजर में लाना चाहूंगा। ये एक चीज है, ये मोबाइल में आपको है, ये अंसारुल बांग्ला का एक जो वहां पे पैम्फलेट है जो मदरसा में पाया गया है। अब बात है कि इस मदरसे में ये पैम्फलेट पाया गया है, इस पैम्फलेट में क्या लिखा है वो मैं आपके लिए और दर्शकों के लिए मैं थोड़ा सा उसको बोलना चाहूंगा कि यहां पे लिखा गया है कि जिहाद पे आपको विश्वास रखना है। दूसरा 14 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि अल्लाह को आपको दुआ करना है कि जो जिहाद में है उनका सलामती दे। तीसरा है कि यहां पे लिखा है कि आपको जिहाद को हर सूरत में, हर कीमत में मदद करना है। दूसरा है कि जिहाद के लिए आपको पैसा वहां कलेक्ट करना है। उसके बाद लिखा है कि जिहाद के लिए आपको ज़कात देना है। तीसरा है कि जो मुजाहिद है उन मुजाहिदों को सपोर्ट करना है, उन मुजाहिदों के इलाज के लिए आपको पैसा देना है, उन मुजाहिदों के जो फैमिलीज है, उनके जो रिश्तेदार है जो पीछे रह जाते हैं उनको आपको देखभाल करना है। तो ऐसे 14 पॉइंटों का पैम्फलेट वहां पाया गया है जो बच्चों के बीच, जो लोगों के बीच बांटा गया है। अब मदरसों में या मदारिस में ऐसे लिफाफों का, ऐसे पैम्फलेट का क्या काम? देखिए, पहले तो मैं अपनी आर्टिकल वाली बात पूरी करूं। जी जी। भारत का संविधान ये इजाजत देता है कि मुसलमान अपने दीनी मदारिस चला सकते हैं, उसके लिए फंड कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें अपना सिलेबस लागू कर सकते हैं और सरकार उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। इसलिए वो आर्टिकल बना था, क्योंकि सरकारों की नीयतें खराब होती हैं। सरकार ताकत के नशे में चूर होकर अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढा सकती है, जिस तरह के जुल्म ये आपकी आसाम सरकार ढा रही है। अब आता हूं मैं आपके नंबर पे, आपकी बात पर। देखिए, लिफ्ट मिला आपको वहां और उसमें कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बात लिखी हुई है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। दूसरी बात, ये जो जिहाद लफ्ज है इसको जो गलत तरीके से आप लोग इस्तेमाल करते हैं। जिहाद बहुत ही पाक और बहुत ही मतलब एक कहना चाहिए बहुत पायस लफ्ज है इस्लाम में। सवाल इसको जब आप आतंकवाद से जोड़ देते हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो आतंकवादी, कोई भी घटना वो आतंकवादी है और उसके खिलाफ आपको उतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो कि हमारा संविधान कहता है। उसके हम बिल्कुल फेवर में नहीं है और हम चाहते हैं कि पूरी सख्त कार्रवाई करें। लेकिन ये सरकार को किसने अधिकार दे दिया कि अगर वहां पे एक लीफलेट मिला तो आप पूरा मदरसा तोड़ देंगे? ये क्या तानाशाही है? ये तो तानाशाही में भी नहीं होता। तब भी ऐसा नहीं होता। जी जी हाफिज साहब, लेकिन आपने ये बात बताई, आप विरोध कर रहे हैं मदरसा को तोड़ने वाली असम में जो हो रहा है, लेकिन आप लोग का अगला स्टेप क्या है? आप लोग कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट में कोई पिटीशन डालेंगे या क्या करेंगे? आपने बताया ये आप विरोध कर रहे हैं कि असम सरकार एक के बाद एक मदरसा ऐसे डिमोलिश करते जा रहे हैं, क्योंकि जिस मदरसा में असम के मुख्यमंत्री ने बता दिया कि जिस मदरसे में ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या ऐसे संदिग्ध लोग मिलेंगे उस मदरसा को तोड़ दिया जाएगा, साफ कर दिया है। तो आप लोग का अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, ये लोकतंत्र है। सबसे पहले तो हम आवाज इसको विरोध में उठा रहे हैं, हम संसद में उठाएंगे, हम विधानसभा में उठाएंगे और जो इससे कोर्ट वो जाता है जो कंसर्न पार्टी होता है। अब चूंकि एमआईएम वहां नहीं है इसलिए एमआईएम तो कोर्ट नहीं जा सकती, लेकिन यकीनन वहां की जो भी तंजीमें होंगी वो कोर्ट जाएंगी। क्योंकि अभी तो कोर्ट है, अभी ये तो संविधान है मुल्क में, तो इस तरह की तानाशाही तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अदालत होती है वो जनता की होती है। अब जनता की अदालत में हम आपके थ्रू जा रहे हैं। अब आपके प्रोग्राम को जो भारत की जनता देख रही है, हम उससे ये अपील करते हैं कि इस मुल्क में आतंकवादी जो तय हो जाता है, जिसको पता होता है, जैसे महात्मा गांधी को जिसने गोली मारी, उसने कहा मैंने गोली मारी, उसका भी केस चला, उसको भी फांसी हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मुल्क में कानून व्यवस्था है। तो अगर किसी मदरसे में कोई गलत बात हो रही है, कोई आतंकवादी गतिविधि है, तो उसके खिलाफ कोर्ट केस में जाना चाहिए, अदालत में चलना चाहिए, अदालत का ऑर्डर आना चाहिए कि उसे तोड़ दिया जाए। मुख्यमंत्री के पास ये राइट कब से आ गया कि वो किसी गतिविधि की बिना पर किसी की बिल्डिंग को ढा दे? ये सरासर तानाशाही, हिटलरशाही और देश को ये आप बहुसंख्यकवाद की तरफ, फांसीवाद की तरफ ले जा रहे हैं। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हाफिज साहब लोकतंत्र में मोहब्बत करते हैं, उनको सबको खड़े हो जाना चाहिए इनके खिलाफ। तानाशाही बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हाफिज साहब, एक चीज को आपको यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालना होगा कि
जो राज्य है, जिस राज्य की बात हम कर रहे हैं, असम की बात कर रहे हैं, ये बांग्लादेश से सटा हुआ है। एक तो इन्फिल्ट्रेशन का बात है, दूसरा इन्फिल्ट्रेशन के सूरत में वहाँ के जो अलगाववाद जो तत्व है या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका तार मिडल ईस्ट से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग यहाँ घुस आ रहे हैं। ऐसे 5 विदेशियों को अभी भी सरकार तलाश कर रही है जो फरार है। और जो यहाँ के आप सोचिए, बोंगाईगांव एक तरफ है, दूसरी तरफ मोरीगांव है, तो वो बोंगाईगांव से आके मोरीगांव में के मदरसे में वो रह रहे हैं। वहाँ पे जो लड़के बच्चे हैं, उनको इस तरीके से इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है। इस तरीके का जो पढ़ाई है वो पढ़ा रहे हैं, उनको इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं, उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं। नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, तो ये चीज एक चीज है, वो चीज को आपको मद्देनजर रखना होगा कि ये दिल्ली का सूरत हाल नहीं है, ये यूपी का सूरत हाल नहीं। यहाँ पे एक टेरिटोरियल जो बाउंड्री है उसको भी आपको समझना होगा। दूसरी बात है, यहाँ पे जैसे एक मदरसे की बात है नहीं, ये काफी सारे इलाकों में काफी सारे मदरसा का ये एक अभी का हाल का जो ये कहानी है, जहां पे बांग्लादेश को या आपका पश्चिम बंगाल से लोग यहां आके रह रहे थे, अभी फरार है। यहां के बच्चों में ट्रेनिंग दे रहे थे, जो पुलिस का कहना है कि पुलिस ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग हथियार का नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग है कि जिहाद का ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको फना हो जाना है, आपको कुर्बान हो जाना है किसी चीज पर। उस तरीके के जो लोगों का दिमाग है, उस लोगों का दिमाग को एक विशेष दिशा में ले जाने की जो शिक्षा है वो दे रहे हैं। तो इस सूरत में ये आपका जो मैं अभी का दल का जो दुहाई है उसको देखे बोल रहा हूं कि जो मदरसा का जो निगरानी है, आप बोले थे कि आर्टिकल 30 है, यहां पे जो दीनी मदरसे हैं उनको अपना जो स्थापना करने का हक होता है, उनका सिलेबस तय करने का हक होता है, तो ये तो सारा हो गया है। लेकिन यहां पे जो गतिविधियां हो रही है उस पर निगरानी रखने का हक किसका है? सरकार रख रही है, सरकार अपना कार्रवाई भी कर भी रही है। देखिए, मैं बता देता हूं आपको, एक तो ये कि मदरसों पे शक करना ये किसी के लिए भी गलत है, क्योंकि ये वही मदारिस हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया। बदकिस्मती से जिन लोगों के हाथ में सरकार है वो लोग आजादी के खिलाफ थे। नहीं सर, हम लोग मदरसे पे शक नहीं कर रहे हैं, मदरसा का इस्तेमाल किया जा रहा है सर, मदरसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपके पॉइंट पर आ रहा हूं। एक किताब है बाइज्जत बरी, उसमें इसी तरह की स्टोरीज हैं। 50 सैकड़ों बच्चे ऐसे थे जिनको पुलिस ने ऐसी अपनी स्टोरी बनाई जैसी आप लोग बता रहे हैं, और स्टोरी बना के उनको जेलों में डाल दिया। 20-20 साल, 25-25 साल वो जेलों में रहे, फिर बाद में कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए। तो पूरी एक पूरी कहानी है, बहुत मोटी किताब है। एक गैर मुस्लिम ने, तो यहाँ जो अब हो रहा है हाफिज साहब, हाफिज साहब एक चीज नहीं, आप ही का बात से मैं एक चीज पूछ लेता हूं कि यहाँ जो हो रहा है हाफिज साहब, ये सारे भी कहानियां हैं। नहीं, सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी बोलिए सर, बोलिए हाफिज साहब, बोलिए। देखिए, मुल्क में कानून व्यवस्था है, एक अदालत है। जब पुलिस कोई कहानी बनाती है तो अदालत में लेके जाती है। जब तक वो अदालत में अपनी कहानी को प्रूफ नहीं करेगी, वो प्रूफ नहीं माना जाएगा उसको। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाएगी तो अदालत उसे छोड़ देगी। सवाल ये है कि हम मीडिया में ही ये तय कर देते हैं कि ये साफ गुनहगार है। अरे भाई, पुलिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, खासतौर से यूएपीए को लेके या आतंकवादी गतिविधियों को लेके, वो हार्डली 2% भी नहीं है जो कन्विक्शन रेट है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब बायस्ड होकर झूठी स्टोरी करती है पुलिस। अब आइए कि वहां वाकई कोई गतिविधि हो रही है। मैं खुद कह रहा हूं, आपके टीवी पे बैठ के कह रहा हूं कि अगर कोई भारत के विरुद्ध एक्टिविटी हो रही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, उसको आप बंद कर दीजिए। लेकिन ये क्या मतलब है कि आप पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट देंगे? आप बुलडोजर के थ्रू पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। वो जो 250 बच्चे वहां रात को बेघर हुए हैं, उनका क्या कसूर है? जो मैनेजमेंट था उनका क्या कसूर है? अगर एक टीचर पकड़ा गया है तो आप उस टीचर को सजा देंगे ना, या उसकी पूरी कम्युनिटी को देंगे? ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। ये ट्रेंड रुकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे मुल्क में नफरत फैला के पूरी दुनिया में जो अपनी मजाक बनवाई है, इस मुल्क की इज्जत कम की है, इससे उसको बचना चाहिए। जी सर, और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ये आप यूपी में मदरसों का जो लिस्ट बन रहा है या रिकॉग्निशन का जो एक सिलसिला शुरू हो रहा है, आपकी पार्टी इसको मिनी एनआरसी क्यों मान रहे हैं? ये रिकॉग्निशन का जो सिलसिला है ये असम में भी शुरू हो रहा है। देखिए, इसलिए मान रहे हैं हम क्योंकि आप उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से 570 के करीब मदरसे रिकॉग्नाइज कर रखे हैं और एड भी दे रखी है।
उन मदरसों की पिछले 5 साल से सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दी गई है, उनको 5,000 करोड़ से ज्यादा उनका बकाया है। यानी वो मदरसे जो 500 कुछ हैं जो सरकार ने गोद ले रखे हैं, उनको तो वो ग्रांट नहीं दे रहे। फिर 15,000 वो मदरसे जो ऑलरेडी उनसे रिकॉग्नाइज्ड है, वो उन मदरसों के पास जा रहे हैं जो उनसे रिकॉग्नाइज नहीं है। भाई आपकी मंशा क्या है? जो मदरसे आपके पास है, ना तो उनकी क्वालिटी अप कर पाए आप, ना उनके आपने सैलरी दे पाए, तो अब आप क्यों करना चाहते हो? वो सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि अब 2024 की उन्हें तैयारी करनी है, माहौल को हिंदू मुस्लिम में बांटना है, मदरसे सॉफ्ट टारगेट उनके हो सकते हैं। और खुद वहां के मंत्री ने यह कहा कि हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो डाटा कलेक्ट करके क्या करोगे आप? फिर हैरेसमेंट करोगे, फिर उनकी डाटा को कलेक्ट करके अगर उनमें जो थोड़ी बहुत कमी पाई जाएगी फिर उनको आप पनिश करोगे। यही एनआरसी में करना है आपने। एनआरसी में भी क्या करना है? आपने पूरा डाटा कलेक्ट करना है, उसके बाद फिर भारतीय शहरियों को परेशान करना है, आपने अपनी मर्जी से उनको जो है नचाना है। वही काम अब आप मदरसों में करना चाह रहे हो। इसलिए हमने उसे कहा यह मिनी एनआरसी है। इस सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि यह मुसलमानों को और इस्लाम से नफरत करती है, ये उनको परेशान करना चाहती है, इसलिए हम इस पर सवालिया निशान उठा। अच्छा, यहाँ की सरकार ने एक एसओपी भी जारी किया है कि यहाँ के मदरसों में जो शिक्षक आएंगे, तो बाहर के अगर शिक्षक आएंगे तो उनको एक पोर्टल में अपना जो पंजीयन है उसको करना है, आपको पोर्टल में रजिस्टर करना है, और एसओपी 5 पॉइंट्स का एक एसओपी है। और दूसरी बात है ये इमाम में भी लागू होता है, इमाम में भी लागू होता है। इमाम मस्जिदों में इमाम में भी लागू होता है, मदरसों में हाफिज जो मौलाना है वो उन पे भी लागू होता है। दूसरी चीज़ और एक है कि अभी साहब एक चीज़ और है कि यहाँ के मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन दोनों का कहना है कि असम को दिलो जान से चाहने वाले जो मुसलमान हैं यहाँ के, वो सरकार की मदद कर रहे हैं। वो इन मदरसों का जो गतिविधि है उसका अब जो मालूमात है वो सरकार को दे रही है, और वो चाह रहे हैं कि ऐसे चीज़ यहाँ पे ना हो, ऐसे चीज़ जो कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। और दूसरी बात है कि एक चीज़ जो समुदाय कौम में ये चीज़ जो फैला हुआ है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो वो कहना है कि असम को जो दिलो जान से चाहते हैं ऐसे मुसलमान सरकार की मदद कर रही है, और बाकी जो है तो है ही, आप जानते ही हैं। नहीं, देखिए, ये जो बात एसओपी की है, ये जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो हुकूमत होती है उसका जिम्मेदारी है और हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि हुकूमत की बात को माने। लेकिन जब हुकूमतें तासुब करती हैं, यानी बायसनेस होती है उनके अंदर, तब सवाल उठते हैं। आपने एसओपी बना दिया, एसओपी को फॉलो करेंगे लोग, लेकिन उस एसओपी के थ्रू कोई आपका कोई हिडन एजेंडा है क्या? अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, और है जैसे अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस मदरसे में कोई ऐसी लीफलेट पाया जाएगा हम उस मदरसे को तोड़ देंगे। आप मुझे बताइए, आप एक लोकतंत्र में जी रहे हैं या मुगलिया दौर में या ब्रिटिश दौर में चले गए आप? मुख्यमंत्री कौन होता है इस बात को कहने वाला? अभी हमारे संस्थाएं हैं, पुलिस है, हमारी अदालतें हैं, वो बाकायदा उसको केस बनता है, अदालतें चेक करती हैं, तब जाके उसकी सजा तय होती है। क्या मुख्यमंत्री सजा तय कर देता है? ये तो पहली बार नरेंद्र मोदी के राज में और बीजेपी की जितनी सूबे की सरकार है उनमें ये काम हो रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिवस है, काली चीज है। ये लोकतंत्र को खा जाएगा, ये तानाशाही में या फांसीवाद में इस मुल्क को कन्वर्ट कर देगा। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं दुनिया में कि जहां जहां एब्सोल्यूट पावर आई है, उनके ऐसे नशे, सत्ता के नशे में चूर होके उन्होंने जुल्म ढाना शुरू किया है और फिर वो जालिम खत्म हुआ है। तो इनको सीखना चाहिए उन जालिमों से। अभी तक कोई जालिम दुनिया में बाकी नहीं रहा। लेकिन अगर हिटलर से फायर है तो हिटलर की भी कहानी पढ़ लें। आज ना हाफिज साहब एक चीज है कि जो आप अंसारुल बांग्ला बोलिए या AQIS बोलिए, इनके जो मंसूबे हैं इन तक एक बहुत कड़ा मैसेज, एक संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी है। आपको ये नहीं लगता है कि उनको समझाया जाए और बताया जाए कि आपके अगर मंसूबे ऐसे हो तो परिणाम ऐसा होना चाहिए, परिणाम ऐसा हो सके। उसके साथ साथ जो ये इंडोक्ट्रिनेशन का मसला है, अपने बच्चे, हम लोग के असम के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मदरसे में पढ़ रहे हैं, वो मिसगाइड ना हो, इस रास्ते में ना चले, ये भी सरकार और समाज का ये भी दायित्व है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हो, कानून को अपने हाथ में लेके आप जुल्म करते हो, तो इस तरह की जो जिहादी तत्व होते हैं उनको और उससे फ्यूल मिलता है, उन्हें ताकत मिलती है, क्योंकि वो तो चाहते हैं अराजकता हो समाज में, अराजकता को वो फायदा उठाते हैं। तो इस तरह की बात को रोकने के लिए सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि अपने जो शहरी हैं, उनके जो आसाम वासी हैं, उनको कॉन्फिडेंस में ले, उनकी कम्युनिटी पुलिसिंग करे,
उनको बाकायदा अगर उस मदरसे में जाके आप उनकी ब्रेन वॉश करेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई देखिए आप एंटी स्टेट एक्टिविटी में अगर शामिल होंगे तो आपको सजा दी जाएगी, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो वो लोग आपको कॉपरेट करेंगे। ये आप उठा के देखिए, दुनिया में जहां भी कहीं इंसर्जेंसी बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि हुकूमत चाहती है ताकत से दबाना, वो ताकत से नहीं दबती। खासतौर से जब आप सिविलियन पे जब आप जुल्म ढाते हो तो वो जिहादी तत्वों को इससे और उनको ताकत मिलती है। मेरा कहना यही है कि जो भी आतंकवादी गिरोह हैं उनके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करें, लेकिन अगर आप उनकी आड़ में पूरे कम्युनिटी को पनिश करेंगे तो इससे बजाय फायदे के नुकसान होगा। अच्छा, आप जो लोकतंत्र सिस्टम है उससे हमारा विश्वास उठे। आप यूपी में देख रहे हैं कि ये 24 का जो तैयारी है उसका एक हिस्सा है, आसाम में भी आपका यही धारणा है कि ये भी 24 का ही एक हिस्सा है? बिल्कुल, आसाम तो इवन इनमें क्या हुआ है, ये जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं इनमें बुलडोजर बनने की आदत, मतलब एक होड़ लगी है। उत्तर प्रदेश वाले ने कहा मैं बुलडोजर बाबा हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा मैं बुलडोजर मामा हूं, फिर दिल्ली में चला वो बुलडोजर अमित शाह था। अब ये बुलडोजर का होड़ है, अब ये आसाम वाले आ गए, अब ये बुलडोजर हेमंत विश्व शर्मा है। तो ये बुलडोजर की जो इन्होंने नई प्रथा शुरू करी है, मैं समझता हूं ये जुल्म की नई कहानी है। ये जुल्म ज्यादा दिन रुकता नहीं है, ये जुल्म जरूर खत्म होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो आवाम है वो लोकतंत्र को पसंद करती है, जमहूरियत को पसंद करती है। लोकतंत्र की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम, हम लोग के पास शायद और 2-3 मिनट ही बाकी है। एक सवाल, एक पॉलिटिकल सवाल आपको पूछना चाहेंगे। आसाम में 34% मुस्लिम है, आपकी पार्टी की प्रेजेंस बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, दिल्ली के आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आसाम में आपकी पार्टी की अभी तक एक्टिविटीज नहीं है, तो कोई है मंशा आप आसाम में भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करें, चुनाव में आप शामिल हो इन कमिंग फ्यूचर? आसाम में देखिए माइनॉरिटीज के राइट उठाने के लिए वहां पे ऑलरेडी AIUDF है, वो बाकायदा वहां राइट को अच्छे तरीके से उठा रहे हैं, इसलिए हमें नहीं जरूरत महसूस होती कि हम वहां जाएं, क्योंकि और बाकी हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और हमें और तमाम सूबों में काम करना है। खास तौर से आसाम को लेकर अभी हमारा कोई प्लान नहीं। आसाम को लेकर कोई प्लान नहीं है। और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो सरकारी मदरसे बंद करने वाली जो बंद हो गया, आसाम में सरकारी मदरसे बंद है अभी, और आसाम कितने मदरसे? 750 से 800 मदरसे, और ये सब मदरसे कन्वर्ट किया गया है रेगुलर स्कूल में। और आसाम के मुख्यमंत्री और बीजेपी का कहना है कि मदरसे के जो बच्चे हैं उनका भी अधिकार है कि मॉडर्न एजुकेशन वो ले और डॉक्टर इंजीनियर बने। इसमें आपका क्या राय है? देखिए, मदरसे के ताल्लुक से लोगों को बड़ी गलतफहमी है। मदरसा जो होता है ये एक तरह से स्पेशलाइज्ड एजुकेशन देता है, कहीं कहीं सुपर स्पेशलाइज्ड देता है। जहां पे छोटी क्लास होती हैं वो दीन की देती हैं, और जो बड़ी क्लासेस आती हैं जहां आलिम और फाजिल और मुफ्ती बनते हैं तो वो सुपर स्पेशलाइजेशन हो जाता है। हर दीनी मदरसे में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर ये पढ़ाया जाता है, ये अब कंपलसरी हो गया, सारे मदरसे उसको फॉलो करते हैं। तो ये कहना सरकार का कि मदरसे खत्म करके वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, वो आखिर रिलीजियस एजुकेशन कहां लेगी? रिलीजियस एजुकेशन, इस्लाम जो है पूरा एक साइंटिफिक, एक डिटेल्ड और डिफाइंड एक रिलीजन है। इसकी हर चीज को पढ़ना पड़ता है, जैसे नमाज पढ़नी है तो पूरी याद करनी है आपको और काम करने हैं, उसका आपको बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज कहां लेगा? वो नॉलेज लेता है मदरसे में। मदरसे को लोग समझते हैं कि वो एक नॉर्मल स्कूल है, वो नॉर्मल नहीं है, वो एक स्पेशलाइज्ड स्कूल है। जिस तरीके से आप डेंटिस्ट्री करते हो तो दांत के बारे में पढ़ते हो, जब आप आंख के डॉक्टर बनते हो तो आंख के बारे में पढ़ते हो, इसी तरीके से जब आपको इस्लामिक थियोलॉजी पढ़नी है तो कहां जाओगे? वो थियोलॉजी पढ़ने के लिए आपको मदरसे में जाना ही होगा। तो चाहे वो सरकारी एड के मदरसे हैं, सरकार बंद कर सकती है, तो कम्युनिटी को अपने खोलने पड़ेंगे। जब तक इस्लाम है और मुसलमान हैं तो ये मदरसे चाहिए होंगे, वरना वो अपने इस्लामिक एजुकेशन कैसे देंगे? तो ये एक एसेंशियल पार्ट है। इसके बारे में जो गलतफहमी और भ्रम फैलाया गया है कि ये कोई जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका रिप्लेसमेंट है, नहीं। मॉडर्न एजुकेशन तो इसमें दी जाती है एज ए एलिमेंट्री, लेकिन जो इसका स्पेसिफिक पर्पज है वो इसकी अपनी थियोलॉजी जो या इस्लामिक दीन की जो नॉलेज है वो दी जाती है, और जो दी जाती रहेगी, वो चाहे सरकार उसे बंद करे या खोले, वो चलता रहेगा काम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेना है। प्रिय दर्शक, এটা বিরতি ল'ব লাগিব। हम लोगों से जुड़ने के लिए हाफिज साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। এটা বিরতি ল'ব লাগিব নিলয় ভট্ট। বিৰতিৰ পিছত আমি অন্য এটা বিষয় লৈ যাম। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে নিলয় ভট্ট আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি কিটো কথা জানিলোঁ, অসমৰ বাহিৰৰ লোকসকলে বিশেষকৈ অসমত মাদ্ৰাছা ভঙাৰ গোটেই বিষয়টো কেনেধৰণে বুজিছে আৰু বুজাৰ পিছত কেনেধৰণে উপস্থাপন কৰিছে তাৰ এক আভাস পালোঁ। পৰৱৰ্তী সময়তো এই যি আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি চলাই গৈ থাকিম, কিন্তু এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম। সাধারণ স্টিল